Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचा है सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजरीन, गुलबर्गा शहर में आज से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं। करीब 8 महीने के बाद कोविड-19 के चलते हुए कॉलेजेस आज से ओपन कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के चलते हुए ऑफलाइन क्लासेस के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। कॉलेज एंट्रेंस में टेम्परेचर चेकिंग किया जा रहा है और कॉलेजेस के सारे कैंटीन्स क्लोज्ड हैं। पीने का पानी और लंच बॉक्स अपने घर से ही लाना होगा, ऐसा पीडीए कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया। आइए सुनते हैं उनका बयान। ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಪಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೊಂದು 3 ದಿವಸ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್, HOD ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನದೆ ಥರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನದೆ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಷಾಯ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಥ್ರೂ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ವಿ ಎಜುಕೇಟ್ ದಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವಾರ ನಾವು ಅನ್ನೋದೇ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 2-3-4 ವೀಕಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ HOD ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ HOD, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಫೀಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅವರು ತೊಗೋತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ತೊಗೊಳೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಶಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. मैं डॉक्टर एस हेब्बाड़ PDA इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ. सरकार के जो आदेश है उसके अनुसार वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करना है. सो यूनिवर्सिटी से मीटिंग हो गया VC से. सो वहाँ से प्रिपरेशन के लिए हमने 2-3 दिन टाइम एक्स्ट्रा लिया है. तो हमारा कॉलेज में एक कोविड सेल बोल के एक स्पेशल टीम बनाया है. एक प्रोफेसर इसका नोडल ऑफिसर है. वो टीम ऑलरेडी 3-4 महीने से कंटिन्यूसली सैनिटाइजेशन वर्क वगैरह जो कंटिन्यू कर रहे हैं. वही टीम अभी पूरा ऑल क्लासरूम्स, HOD रूम्स, स्टाफ रूम, जहाँ भी बच्चे हैं स्टाफ जाते हैं पूरा सैनिटाइजेशन वर्क कर रहे हैं. एक शेड्यूल में डाले वो रेगुलरली वो सैनिटाइजेशन करते रहते हैं. कॉलेज के लिए हमने एक सिंगल एंट्री बनाया बच्चों के लिए. ऐसे ही गर्ल स्टूडेंट के लिए एक सिंगल एंट्री है. वहाँ पर थर्मल टेस्टिंग हो जाता है. सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड दम. एंड कॉलेज में हमने कैंटीन बंद किया है. बच्चों को आज दम टू बच्चों को अपने घर से खाना एंड पानी लाने के लिए हमने बोला है. एंड कैंटीन में ओनली कषाय बोलते हैं ना, काढ़ा और ओनली एक चाय मिलेगा, ज़्यादा नहीं. लाइब्रेरी बंद हो चुका है. सो सरकार का जो भी प्रिकॉशन बोले हैं हमने वो ऑल प्रिकॉशन हमने ले रहे हैं. सो हमारा HODs, फैकल्टी, एवरीबडी खुद एक जिम्मेदारी फील करके बच्चों को जो गाइड करना है, जो काउंसिल करना है वो कर रहे हैं. पोस्टर बना के तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या ये करना है, हम भी वो भी कर रहे हैं. तो ये सब करके मुझे लगता है पहला ओनली हमने फाइनल ईयर बच्चों को बुलाए हैं. सो 1-2 हफ्ता देखते हैं करेक्ट कैसा होता है. उसके बाद हम लोअर सेमेस्टर बुला के मुझे लगता है 1 महीने में जो भी प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट से आया है वो लेके हमने ऑफलाइन क्लासेस परफेक्टली करने का पूरा प्लान बनाया है. थैंक यू. मेरा नाम अमित लिखरा है. मैं EEE डिपार्टमेंट की हूँ और
मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मुझे भी लगता है कि ऑफलाइन क्लास बहुत ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज वी इंटरेक्ट मोर विद द लेक्चरर्स, वी कैन क्लियर आउट डाउट्स, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम अपने लेक्चरर्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये 8 मंथ्स का गैप बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट किया है, सो वी नीड टू फिल दैट, and since this is our last year, we'll be going, then we'll separate, so we want to completely live this further period. So and as we are having our project, तो प्रोजेक्ट के लिए भी हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है जो कि हमें अपने लेक्चरर से इंटरेक्ट करने से मिलती है। सो वी नीड टू इंटरेक्ट, फॉर दैट ऑफलाइन इज़ एक्चुअली मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक सो दिस ऑनलाइन क्लासेस आर गुड, बेटर ऑफ, सो दिस ऑफलाइन क्लासेस आर बेटर। दूसरों के लिए ये है कि हाँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि अभी कोविड गया नहीं है, still we have COVID, we need to take precautions like mask, sanitizer, these two are compulsory thing. We need to maintain distance. Apart from this, we have many precautionary things which we have to maintain. We are educated people, so we know how to live with this virus. So we should take all the precautions and maintain our distance and follow all the guidelines which we have been provided, so that we can be safe and we can carry on our studies also. कॉलेज के लिए इंतजाम कैसे? वही गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक हमारे कॉलेज में आज से कॉलेज शुरू करने का एक कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी ने डिसाइड किया है। तो इस सिलसिले में कॉलेज में पूरे सैनिटाइजेशन का वर्क चल रहा है अब। सो आउटसोर्सिंग करके जितने भी बिल्डिंग हर कोने कोने को जो भी सैनिटाइजेशन करना है, ताकि कल किसी को भी इन्फेक्शन, कोरोना के इन्फेक्शन ना हो, ये नज़र में रखते हुए अभी सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है। और बच्चे भी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 20 तारीख से आते हैं, ऐसे हम उम्मीद रख रहे हैं हम। तो आज से थोड़ा 2-3 लोग ऐसा आ रहे हैं, अब ये परसेंटेज कम है, लेकिन 20 तारीख से हमारे ख्याल से ज़्यादा लोग आएंगे। ये कल तक हॉलीडे था और ये वीक ट्यूसडे है, तो कल नहीं तो परसों नेक्स्ट वीक से तो कंपलसरी चलेगा। रिस्पॉन्स अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। तो अभी उनको मालूम नहीं, अभी उनको अभी आदत सा होना चाहिए, और 1-2-3 दिन में और दिन ब दिन बच्चे का स्ट्रेंथ बढ़ते ही जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक माहौल पैदा होगा। से उससे पहले हम सैनिटाइजेशन भी करना है, तो कम से कम वो भी 2-3 दिन तो लगेगा ही वो। तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, टोटली हमारा एक 100 रूम्स, लैब वगैरह पकड़े तो बहुत 100 रूम्स हो जाते हैं। बड़े पैमाने पे सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है। उसके बाद आते हैं, हम उम्मीद रखते हैं। मैं प्रोफेसर संजय माकल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हमारे कॉलेज पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। जो क्लासेस है वो अच्छा है, बेटर है, या ये आपके हिसाब से? नहीं, ऑनलाइन से कंपेयर करें तो ऑफलाइन ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स अगर हमारे सामने रहेंगे तो हम जो प्रोफेसर्स हैं उनको बोलने के लिए भी एक हौसला भी बढ़ेगा उनसे, और इंटरेक्शन जो है ना, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है तो बच्चों को अच्छे समझ में भी आता है। हम बोलने वालों को भी कैसे बोलना, क्या बोलना, मतलब हाउ टू कन्विंस, ये सभी आ जाएगा। नहीं तो वरना क्या हो जाएगा, वो वन साइडेड हो जा रहा है। वहाँ बच्चे बैठ रहे क्या नहीं, उनको बोर हो रहा, कुछ भी मालूम, उनसे कुछ भी फीडबैक हमको नहीं मालूम हो रहा। अगर क्लास में रहेंगे तो अगर स्टूडेंट्स उधर इधर देख रहे हैं तो हमको पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं अच्छे नहीं बोल रहे, फिर हमको उसको ट्विस्ट करके, मतलब उसको अलग सा तरीक़ा से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वन साइडेड है। लेकिन ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज आना है, तो ताकि एक क्या है, कुछ ना कुछ समझ सके हम। लेकिन ये क्या, वन टेस्ट भी, एग्ज़ाम भी, जो कुछ भी ऑनलाइन चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वन साइड हो रहा है। वो कितने समझ में आ गया, कितने समझे मालूम नहीं। वहाँ अगर कॉपी कर रहे क्या नहीं, कॉपी तो नहीं कर रहे, लेकिन हमको लगता है वैसा, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन बोल नहीं सकते। इसलिए वो जो है ना, आमने सामने रहना ही बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम अमृता है, मैं ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से हूँ। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ।
जैसे कि आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार 17 से कॉलेज स्टार्ट होना है, तो हम लोग उस रिगार्डिंग दैट हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को भी यही लगता होगा कि ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से पहले, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन अच्छे से होगा हमारे लेक्चरर्स के साथ ही साथ हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड कर पाएंगे, जो हम पिछले 8 महीनों से मतलब किसी को हम मिल नहीं पा रहे थे सही से। तो ये हमारा फाइनल ईयर है, हम हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छे से कर पाएंगे और हम हमारे लेक्चरर्स के साथ भी और अच्छे से बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड ऑब्वियसली गया नहीं है, हर किसी को अपने खुद के प्रिकॉशंस लेने होंगे, मास्क लगाए रखना होगा, सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि कोविड भी चला गया, आराम से रहो, ऐसे नहीं है। सबको अपने अपने प्रिकॉशंस लेंगे होंगे, क्योंकि हम इट्स नॉट जस्ट हमारा लाइफ, हमारे साथ हम जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके लाइफ के लिए भी थ्रेट होगा। तो टेक योर ओन प्रिकॉशंस and choose wisely. I'm Spurti Joshi. I'm from PDA College Gulbarga and I'm a EEE student. So मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऑफलाइन क्लासेस आर फार मोर बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि हम यहाँ पे गुलबर्गा में ही है। थोड़े हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो दूसरे गांव में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट सही से नहीं आता, जो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा इश्यूज़ है, मतलब टेक्निकल इश्यूज़ इंटरनेट के कारण, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ठीक से नहीं सुन पा रहे। तो उनके लिए मतलब बेहतर होगा कि ऑफलाइन अभी स्टार्ट हुआ है तो अच्छा है उनके लिए भी, तो वो भी आ सकते हैं अभी अच्छे से सुनने के लिए कॉलेज में। तो और एक जो है, हम जैसे फाइनल ईयर में है तो हमारा प्रोजेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हम ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगे तो हमारे लेक्चरर्स रहेंगे तो हमको ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड हमको कैसे करना है वो लोग अच्छे से गाइड कर पाएंगे। जो हम ऑनलाइन मतलब रहते थे, हम विया कॉल और टेक्स्ट के थ्रू हम लोग लेक्चर से बात करते थे, जो उतना मतलब प्रोडक्टिव नहीं था। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस उतना मतलब ये नहीं होता था क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर, सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर अटेंडिंग इट। थैंक यू। ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ बहुत अच्छा दिख रहा और हमारे को पढ़ने कुछ नया मिलता। हाँ, प्रैक्टिकल जो है अलग ही रहता, नॉलेज अलग ही रहता उसका और डिफरेंट रहता, बट ज़्यादा समझ में तो ऑनलाइन पे नहीं आता, उतना समझ नहीं सकते अपन, बट प्रैक्टिकल जो ले रहे क्लासेस उससे ले सकते हैं आराम से। कुछ मिस्टेक भी हुआ तो सही कर सकते हैं यहाँ पे, सर से सवाल पूछ हाँ सर से सवाल पूछ सकते हैं, बट ऑनलाइन उतना नहीं पूछ सकते। हाँ, ऑनलाइन उतना नहीं पूछ सकते। अभी फर्स्ट डे है आपका, कैसा लग रहा है आपको? बच्चे हाँ बहुत अच्छा लग रहा, बट बच्चे कोई भी नहीं आए। हाँ, बच्चे कम है, धीरे धीरे बढ़ते हैं वो बच्चे भी, और स्टार्ट हुआ तो अच्छा हो जाता। हाँ, मैं खुशी है सर बहुत। ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮದೇ